let us start our historic event today. Good afternoon, ladies and gentlemen. Thank you everyone for gracing the event with your presence. Today, it's my honor to share that Youth of India Foundation is the first organization who has brought the G20 event of youth and angels to the hills. Our Shailesh Bhaiya is an inspiration for all of us. Within minutes, he can ideate, build a plan, and delegate responsibility. For example, he recently visited my phone, then within minutes, he created the Youth 2047 book club idea, and from a small idea, we took it so big to developing blogs and content. Friends, Youth of India Foundation means every young Indian is a part of Youth of India with the vision of 2047, when India will celebrate its 100th independence. In the leadership of our dear Bhaiya, we have completed more than 100 plus projects with across 1 lakh volunteers. The first campaign, the Pocket Money campaign, received World's Best Campaign by UN in 2015. From NOS in 2015 to now, Youth of India has received special accreditation from United Nations, partnered with World Bank Youth, COP27, G20 organization, and Shailesh Bhaiya has worked with 30 plus government on policy. A man who regularly is invited by world leaders, stays so humble and down to earth. We believe in bringing organizations who are working for the common cause. As you can see, a very own dynamic, and the chief guest, a lady who is known by all, a lady who is shown as a role model by our Bhaiya when he encourages young girls in our area. Anjali Birla Ma'am is the founder of Ananya Foundation, the foundation that has taken numerous effective initiatives like Sandan IAS, which is helping girls to achieve their dreams, especially in the field of civil services. A lady who requires no introduction. Anjali Ma'am's organization is working tirelessly for girls and have taken initiatives for providing free self-defense workshop for girls starting in class 6 to class 12, known as Nirvay. Further, many organizations like United Nations SDGs, Impact Chat, Lions Karai Urja, and Taj Karshon have partnered with this prestigious event. I would now invite our respected Sir, Mr. Birlaji and Ma'am Anjali Birlaji on stage and request our team to kindly acknowledge our Ma'am and Sir with Youth of India Khadas. So ladies and gentlemen, put your hands together for our respected, very own the inspiration for all the women and the girls, our very own Ms. Anjali Birlaji. So please continue putting your hands. मुझे लगता है कि ये पूरे माहौल में एक बार जोरदार तालियां ऑनरेबल स्पीकर लोकसभा
जोर से बजनी चाहिए। सोचिए, आप 2000 किलोमीटर दूर से आए हैं। किससे मिलने आए हैं? किससे मिलने आए हैं? हम सबसे? बताइएगा, 2000 किलोमीटर से किससे मिलने आए हैं? हम सबसे मिलने आए हैं। तो हम क्या इनको कैसे वेलकम करेंगे? पहाड़ का वेलकम तो लोग नहीं, पूरा विश्व जानता है। एक बार जोरदार तालियों के साथ this event wouldn't have been possible without a woman. If it is said, a woman, man gets inside woman. So it's a woman who stood, and as Shastra says, Yatra Naryate Pujyata Tatra Devta. And it is Anjali who got us this done, who's right here to discuss, speak with you. So thank you so much, Anjali. हाथ लोग आए हैं, एक बार कूच बिहार से जो आए हैं हाथ उठाइए। जलपाईगुड़ी से, अलीपुरद्वार से तो बहुत होंगे। दार्जिलिंग से कौन कौन है? दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, मालदा और बालूरघाट रह गया। रायगंज तो मतलब दिनाजपुर रह गया है। अभी वापस ओम बिरला जी को बुलाना है हमें उसको उत्तर बंगाल के इवेंट के कार्यक्रम में। इनमें एक मैं सर आपके बारे में इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। ओम में ही आस्था है, ओम में ही विश्वास, ओम में ही शक्ति है और ओम में ही सारा संसार। ओम से ही होती है अच्छी दिन की शुरुआत। और यूथ ऑफ इंडिया की G20 सम्मेलन का युवा क्षेत्र भी इन्हीं से शुरुआत हो रहा है। तो हम सब के साथ बोले एक बार ओम नमः शिवाय। ऑनरेबल स्पीकर, माननीय अध्यक्ष जी, जो सदन में इनको बताया कहा जाता है, आप एग्रीकल्चरिस्ट रहे हैं। जब अभी हम प्लांटेशन कर रहे थे तो इन्होंने बताया कि ये हाथ से ऐसे दबेगा नहीं, इसको और अच्छे से दबाना होगा। इनमें वो प्रेम मिट्टी के प्रति वो आज भी है। सोशल वर्कर रहे हैं और आप कोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी से सांसद भी हैं। कोटा और बंगाल में एक चीज कॉमन है सर, आपके यहाँ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बहुत हैं और हमारे यहाँ एजुकेशन का मूल बंगाल को भी माना जाता है। सो इसी के साथ सर की बहुत सारे इनिशिएटिव्स रहते हैं। सुपोषित माँ, जो कि हर माँ को और बच्चों को हेल्दी रखा जाए, इनका एक बहुत बड़ा रीच है। आप 2 दिन से यहाँ हैं, रेगुलरली आउटरीच प्रोग्राम्स कर रहे हैं। पूरे नॉर्थ ईस्ट में आप आउटरीच कर रहे हैं कि कैसे पार्लियामेंट जो दिल्ली में है वो वर्ल्ड के कोने-कोने में चले जाए, भारत के कोने-कोने में चले जाए। और आप आज हमारे साथ यहाँ जुड़े हैं सर, उसके लिए बहुत-बहुत आपका धन्यवाद। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आप युवाओं के साथ आप कुछ बातें रखें और हम सबको प्रेरणा दें। आज मैं आपसे चर्चा करूंगा, संवाद करूंगा, कुछ आपकी आकांक्षा जानूंगा, कुछ नौजवानों की अपेक्षाएं जानूंगा। किस तरीके से देश का नौजवान ज्वलंत मुद्दों पर, चुनौतियों पर और पहाड़ों में रहने वाले उन लोगों की चुनौतियां का समाधान क्या हो सकता है, कैसे हम बेहतर भारत बना सकते हैं, इस इलाके में जो जलवायु परिवर्तन के विषय पर, पर्यावरण के विषय में जिस तरह की जागरूकता है, पहाड़ों में आप सब लोगों के कारण ये पहाड़ सुरक्षित है, सुरक्षित है।
और जो दुनिया की चुनौती है, जलवायु परिवर्तन की जो दुनिया की चुनौती, समझती चुनौती है, उस पर भारत में लगातार क्या प्रयास हुए, इस पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने किस तरीके से जलवायु परिवर्तन पर अपनी दिशा दी है, व्यक्ति को किस तरीके से पर्यावरण के संग जीने की लाइफ के बारे में बताया। इसमें पहाड़ का व्यक्ति ज्यादा जानकारी रखता है, पहाड़ का नौजवान ज्यादा हमसे ज्यादा समझता है, उसकी समझ हमसे ज्यादा है, उनका पर्यावरण के प्रति उनका लगाव, उसको संरक्षण करने में उनके प्रयास हमसे अधिक है। और इस चर्चा संवाद में दो विषय मेरे भी हैं जो मैं आपके सामने रखूंगा। और क्या अपेक्षा है देश के आप लोगों से, वो भी मैं रखूंगा। मैं मानता हूं कि देश में, दुनिया के अंदर जो कुछ भी परिवर्तन हुए, परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन हो, आर्थिक परिवर्तन हो, राजनीतिक परिवर्तन हो, हर परिवर्तन में नौजवानों की प्रमुख भूमिका है। हम इस देश का, विश्व के गौरवशाली इतिहास को जब देखते हैं तो हमें लगता है कि आजादी के 75 साल बाद भी हमें नए परिवर्तन के लिए और कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता है। इस 75 वर्ष की यात्रा में हमने सामाजिक, आर्थिक बहुत परिवर्तन किए। आजादी का पहले का इतिहास देखें तो उसमें भी सबसे बड़ा योगदान नौजवानों का रहा। और आजादी के बाद भारत के नवनिर्माण में भी योगदान नौजवानों का रहा। लेकिन इस 21वीं शताब्दी के अंदर जो परिवर्तन की तीव्रता है, तेजी है, जो सपने हैं, वो मैं भारत के नौजवानों में देख रहा हूं। और इसलिए हर चुनौतियों का समाधान, हर व्यक्ति की समस्या का समाधान, सरकार को समाज की समस्याओं का सॉल्यूशन देना, उसका समाधान देना, इसमें हमारे नौजवानों की महत्वपूर्ण भूमिका अभी वर्तमान में भी है। और दुनिया के जितने देश में आप जाओगे, आपको दो बातें ध्यान में आएगी कि उस दुनिया के अंदर जो कुछ भी नया इनोवेशन हो, रिसर्च हो, टेक्नोलॉजी में परिवर्तन हो, वहां भी भारत के नौजवानों की भूमिका है, देश के बाहर भी। और देश के अंदर तो हम लगातार हमारे नौजवानों की बौद्धिक क्षमता, इनोवेशन, रिसर्च, नए आत्मविश्वास से परिवर्तन भारत का देख रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ एक क्षेत्र ऐसा भी है जो पहाड़ी है, जो आदिवासी इलाके हैं, उनमें कहीं ना कहीं आप जैसे नौजवानों को परिवर्तन करने की आवश्यकता है। यूथ फॉर इंडिया इसी तरीके के कार्यक्रम बना रही, योजना बना रही है।
शैलेश सिंघल जी हैं, राजेश अग्रवाल जी हैं, रवि जी हैं। इन्होंने भी इसी इलाके के अंदर किस तरीके से हम नौजवानों को जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण, COP26, दुनिया के अंदर जलवायु परिवर्तन कोई डिबेट, चर्चा, उसमें जन भागीदारी, लोगों की लीव ऑफ लाइफ, ये बहुत बड़ी चर्चाएं चल रही है। लेकिन हम तो शुरू से ही प्रकृति पूजक रहे हैं। हम धरती माँ की पूजा करते हैं, पेड़ की पूजा करते हैं, हम गौ माँ की पूजा करते हैं, हम जल की, वायु की, अग्नि की। हमारी संस्कृति दुनिया की संस्कृति कुछ अलग है। हम जलवायु परिवर्तन को केवल या पर्यावरण को केवल हम वैश्विक चुनौतियों से नहीं मानते। हमारी तो जिंदगी के अंदर आध्यात्मिक, धर्म और संस्कृति ही पर्यावरण को बचाने की है और जलवायु परिवर्तन के लिए हम आदिकाल से ही हमारे सतत प्रयास रहे हैं। उस दौर आया था, जो भी उस समय के लिए आवश्यकता थी कि अगर तेजी से प्रगति करनी है या आर्थिक परिवर्तन करना है, वह भी एक आवश्यकता थी, क्योंकि हमें दुनिया के विकसित राष्ट्रों से मुकाबला करना है, तो उस आर्थिक परिवर्तन के युग को भी शुरू करना होगा। लेकिन आज हम आर्थिक परिवर्तन भी कर रहे हैं, जलवायु परिवर्तन, दोनों संतुलन बनाकर हम आर्थिक दिशा तय कर रहे हैं। और ये प्रगति दुनिया देख रही है। किस तरीके से हमने, चाहे पानी की शुद्धता का मामला हो, चाहे जंगल बचाने का मामला हो, चाहे सोलर अलायंस का मामला हो, तो दुनिया में सोच सकता था कि भारत जैसे देश में, जब दुनिया के उस समय विकसित राष्ट्रों ने भी कोशिश की थी कि हम कोयला बंद कर देंगे, स्वच्छ ऊर्जा लाएंगे, लेकिन वो नहीं चल पाया। लेकिन हमने शनै शनै, लेकिन आज हम दिशा की ओर बढ़ रहे हैं कि हमने जो लक्ष्य तय किए थे, उस लक्ष्यों से ज्यादा अधिक हम ऊर्जा के क्षेत्र के अंदर भी, अन्य जंगल बचाने के क्षेत्र में भी, और हमारी जीने की जिंदगी की के बारे में भी हमने बहुत सारे परिवर्तन किए। और ये परिवर्तन दुनिया को के अंदर भारत नेतृत्व भी कर रहा है, दुनिया को दिशा भी दे रहा है। इसलिए ये विषय आपने रखा नौजवानों के लिए, और विशेष रूप से देश का नौजवान इस पर चिंता व्यक्त कर रहा है। मैं देखता हूं कि हर जगह नौजवान पेड़ को लगाना, पेड़ को बचाने के लिए अभियान चला रखे हैं। इन्हें अपनी जिंदगियां पेड़ बचाने के लिए दे दिए। नौजवानों ने जागृति आई, स्कूल में आई, कॉलेज में आई, विश्वविद्यालय में आई। मैं भी मेरे क्षेत्र में जाता हूँ, अन्य राज्यों में जाता हूँ, देखता हूँ जलवायु परिवर्तन के लिए हमारी पीढ़ी में एक नया परिवर्तन आया है। जागरूकता आई है, सतर्कता आई है। ये परिवर्तन की दिशा है। 21वीं सदी के अंदर हम किस तरीके से जलवायु परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण विषय पर नेतृत्व करेंगे G20 के अंदर। और हम हमारे पैरामीटर
जो हमारी विकसित राष्ट्रों से हमारी अपेक्षाएं हैं, उसमें अपने विषय को रखेंगे। भी पर्यावरण के विषय पर, जलवायु विश्लेषण के विषय पर हमारा जो इंटरनेशनल फोरम है IPU, उस पर चर्चा होती रहती है। देश की संसदों में, भारत की संसद में भी जलवायु परिवर्तन पर लगातार 4 दिन तक लगातार मतलब एक लंबी चर्चा हुई। सबने अपने सकारात्मक विचार रखे, सुझाव रखे, और उन सकारात्मक सुझावों, उन चर्चा और संवादों से सरकार ने अपनी रूपरेखा बताई, अपनी कार्य योजना बताई। मुझे लगता है कि आने वाले समय के अंदर भारत इसमें ठोस कदम उठा रहा है और हम सबके प्रयासों से ठोस कार्रवाई होगी। आज मैं कुछ गांव में गया था, संसद सदस्य माननीय सब सदन में अपनी बात को कहते हैं, गंभीरता से कहते हैं, इलाके के मुद्दों को उठाते हैं। कि मुझे लगा कि कहीं ना कहीं अभी भी आप जैसी संगठनों को इन गांवों के अंदर और तेजी से संगठन खड़ा करने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि हर गांव की समस्या है। अगर एक गांव के अंदर मैं जब मिलता हूं तो मुझे कोई जवाब मिलता है, बड़ी संख्या में जवाब मिलते हैं, सब मोबाइल चलाते हुए भी मिलते हैं, हाथ में 90% नहीं, सिर्फ पास तो मोबाइल हाथ में होता है। जितने समय रहो उतने समय मोबाइल ही चलता रहता है, फोटो खींच देते हैं, कोई मोबाइल पे देख लेते हैं। मुझे लगा कि आपके इस संगठन को इस पहाड़ के इलाके के, दुर्गम इलाके के अंदर सबसे अंतिम छोर के अभाव में रहने वाले व्यक्तियों की समस्या के लिए एक एक गांव के अंदर 5 से 10 नौजवानों को तैयार है। उस गांव की समस्याओं को समझे और उस समस्याओं को समाधान करने के लिए उपयुक्त मंच पर आए, प्लेटफॉर्म पर चर्चा करें। जैसे स्कूल है, मैं स्कूल में गया आज, तो स्कूल में देखा कि वहां पर बैठने की जगह नहीं थी, फर्नीचर नहीं था, बोर्ड था तो बहुत छोटा बोर्ड था, बच्चों की संख्या कम थी। 3-4 चीजों पर हम अगर काम कर लें और उस पैरामीटर को हम कहते हैं कि भाई हर बच्चा जो पैदा होगा वो शिक्षित होगा ही होगा, हमारी फाउंडेशन इस लक्ष्य पर काम करेगी। गांव में अगर 3-4 साल का बच्चा होगा तो कोशिश करेंगे कि उसका बच्चा स्कूल में जाए, ये हमारा आग्रह को निमित्त होना चाहिए। तो हम एक शिक्षित पीढ़ी को तैयार कर लेंगे। ये परिवर्तन मैंने पहाड़ों में देखा है अभी कि दुर्गम इलाके के अंदर 7-7, 8-8 किलोमीटर पैदल जाकर लोग पढ़ने जाते हैं। 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे जाकर पढ़ने जाते हैं। पहले तो शायद कहते थे कि हम सुबह 3 घंटे, शाम को 3 घंटे में स्कूल पहुंचने में लगते थे, कॉलेज पहुंचने में लगते थे। अब स्कूल भी कुछ खुलने लगे हैं, कुछ वॉलंटियर भी काम करना शुरू किया है कि बिना पैसों के काम करते हैं, समाज सेवा के लिए काम करते हैं, स्कूलों में पढ़ाते हैं। तो हमें पहला कदम होना चाहिए कि हर बच्चा हमारा जो पैदा हुआ वो शिक्षित हो, दीक्षित हो। दूसरा, वहां पर जो पढ़ने वाला नौजवान है उसमें अधिकतम परिवार के लोग चाय बागानों में काम करते हैं और चाय बागान में कड़ी मेहनत कर, कठिन परिश्रम कर बड़ी मेहनत से अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। कोई स्कूल तक पढ़ाता है, कॉलेज तक पढ़ाता है, उच्च शिक्षा तक पढ़ाता है। ऐसे लोगों को हम आइडेंटिफाई करें गांव के अंदर। हमारे पास लिस्ट होनी चाहिए कि बच्चा पढ़ लिया, इसको 12th तक पढ़ना है, इसकी ये परेशानियां हैं। तो वो सहयोग करने वाले बहुत सारे हैं।
मुझे इसलिए लगा कि मेरे इलाके के अंदर फर्नीचर था तो भी लोग आए कि साहब हम CSR में फर्नीचर देना चाहते हैं। अब जिद करने को दे जाओ 500 बच्चे का, और 3 महीने तक पढ़ा रहा क्योंकि कोई स्कूल में डिमांड नहीं थी। तो मुझे लगा कि देने वालों की कोई कमी नहीं है, देने वाला चाहता है मैं सबसे पहले उन अभावों को दूर करने में उसके अभाव को बताना और उस अभाव को उचित व्यक्ति तक पहुंचना। तो अगर हमने एजुकेशन सिस्टम को ठीक कर दिया, और मुझे पहाड़ में लगा कि लोगों की नौजवान बहुत मेहनती कड़ी मेहनत करने वाला है, जरूर है उसके अंदर, केवल उसको आपको जोड़ना है, आपकी कनेक्टिविटी से, हमारे से कनेक्टिविटी, और फिर हम गांव के अंदर परिवर्तन करेंगे। आज नहीं तो कल 5 साल लगेंगे, 10 साल लगेंगे, लेकिन उस गांव के अंदर परिवर्तन होगा ही होगा, आप निश्चित मानो को वो कॉलेज का उसकी ट्रेनिंग होना चाहिए कि बच्चा कॉलेज में आ गया तो उसकी प्लेसमेंट क्या होना चाहिए, नौकरी की क्या क्या संसाधन होने चाहिए, कहाँ नौकरी मिल सकती, जहां भी नौकरी के प्लेसमेंट की आवश्यकता हो, वो बच्चे 2 बच्चे ट्रेंड रहे हैं कि ये यहाँ पर प्लेसमेंट एजेंसियों से, अन्य लोगों से, स्किल डेवलपमेंट वालों से, लेबर डिपार्टमेंट वालों से, और जितने भी अब एक समस्या आती है, कई लोगों को मानव संसाधन की आवश्यकता पड़ती है, उनके पास बेहतर मानव संसाधन नहीं होते, कई मानव संसाधन होते हैं तो उनको पता नहीं होता कहाँ जाना है। तो दोनों को केवल जमाना है। तो 2-2, 3-4, 5-5 लोगों ने काम शुरू किया, तो फिर बड़ी कंपनियों से बात करेंगे, दार्जिलिंग में आएंगे, कंपनी आएगी, आपसे चर्चा करेगी, आपके पास लिस्ट होगी, रोजगार मेले लगेंगे तो तुरंत कहेंगे भाई ये हमारे पास रोजगार मेले, प्लेसमेंट को पहले से भेज कर रखेंगे। लोगों को रोजगार, अगर 2 गांव के अंदर, 4 गांव के अंदर, शहर के अंदर पढ़कर वो आने लगा तो जज्बात उसकी मिट्टी से जुड़े हैं जी। एक दिन उस गांव में परिवर्तन करेगा वो जो पढ़ लिया वो अपनी जिंदगी गाँव गई। मुझे आर्मी के लोग मिले जिन्होंने आर्मी की सेवाएं देके गांव में सेवा का काम करना चाहते, तो पढ़ाई के साथ उसकी प्लेसमेंट तक उसकी ट्रैकिंग करना, अच्छे रोजगार उसको मिल गए तो उसके परिवार का गांव के अंदर बहुत परिवर्तन करेगा। दूसरा हेल्थ सिस्टम में गांव के अंदर 2 लड़के केवल कोरोना के इस विषम परिस्थिति में देखा कि हमने गांव में 3-3, 4-4 कोरोना योद्धा बनाए। उन कोरोना योद्धाओं को बीपी इंस्ट्रूमेंट दे दिया, ऑक्सीमीटर दे दिया, थर्मामीटर दे दिया, तो दवाएं दे दी। और मैंने कहा गांव के अंदर, गांव के लोगों को उस समय पता नहीं था सांसें फूल रही है, तो वो ऑक्सीमीटर तो था नहीं, तो कहाँ नापता हुआ ऑक्सीमीटर नीचे, हमने गांव में 2-2 ऑक्सीमीटर से उसको नापोगे, इसको ऑक्सीजन कम हो रही, तुरंत हर पंचायत में एम्बुलेंस, उसको तुरंत हॉस्पिटल लेके जाओ या ऑक्सीजन उससे उपलब्ध कराओ। 1 सेकंड का काम होता था ना, 1 सेकंड। तो गांव में हमें ऐसे 2-2, 3-3 वर्कर तैयार करना, फिर मुझसे संपर्क करना, मैं उनकी ट्रेनिंग करा दूंगा, और ट्रेनिंग करने के बाद कोई कंपनी से कहेंगे भाई इन बच्चों को 500,000 रुपए दे, गांव में रहना चाहते हैं, इनका छोटा मोटा इलाज करते रहेंगे, टेलीमेडिसिन से जुड़ते रहेंगे, और गंभीर बीमारी हुई तो कहाँ दिखाना है, कैसे दिखाना है, क्या बीमारी, उसकी कंसल्टेंट हो जाएंगे, क्योंकि गांव में बीमार पड़े कब से उसके पास पहुंचेगा, क्योंकि अभी टाइम लगेगा गांव के अंदर, गांव में PSC, CSC, हेल्थ सेंटर खोलने में समय लगेगा। जब तक समय लगेगा हम तैयार होने की, तो उस गांव में हर व्यक्ति स्वस्थ, कोई गांव में बिना कई बीमारी की जानकारी के अभाव में, जब बहुत गंभीर बीमारी हो जाती है जब जाकर वो दिखाने जाता है, जब तक उसकी छोटी मोटी बीमारी होती है खुद ही इलाज करता रहता है। लेकिन समय समय पर जांच होती रही, BP से जांच होती रही, कई बड़े लोग तो 6 महीने में जांचें कराते हैं, कम से कम हर गांव के लोगों की 1 साल 2 साल। और फिर सिस्टम है, ऐसे पहाड़ के इलाकों में हम प्लान करें, आप हमारे पास प्रोजेक्ट ले आओ,
कि हर स्कूल के बच्चे की जांच हो जाए और उसका कार्ड बन जाए। ऐसी स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। तो सारे स्कूल में जांच होगी, जांच होने के बाद उस स्कूल में से कोई 3, 4, 5, 6 बच्चे भी मिल गए जिनको प्रारंभिक बीमारी है और वो ठीक हो सकती, तो उसका इलाज करना। अभी मैं सिक्किम में गया था, तो सिक्किम के मुख्यमंत्री ने हमें बताया कि यहाँ बीमारी किडनी की बीमारी होती है, कैंसर की होती है। अब सिक्किम देश का वो राज्य है जो जैविक खेती के रूप में सबसे ज्यादा पहला प्रदेश होगा जहां पूर्णतः जैविक खेती होती है। लेकिन उसके बाद भी कैंसर अधिक है, किडनी की बीमारी अलग है, और नया ट्रेंड हो गया कि बच्चे पैदा नहीं होते। मुख्यमंत्री चिंतित थे, उनको नीचे पहाड़ के नीचे आके इलाज करना पड़ता था, इतने बड़े से। तो हेल्थ, एजुकेशन, रोजगार, बाकी जिंदगी के सब रास्ते निकल जाएंगे। वो पीने का पानी पहुंच रहा है, और नहीं पहुंचेगा, 1 साल बाद पहुंच जाएगा, 2 साल बाद पहुंच रहा है, बिजली पहुंच रही है, आने वाले समय में फाइबर केबल भी पहुंच जाएगा, डिजिटल भी पहुंच जाएगा। वो सब जो पढ़ने वाला बच्चा है ना, जो रोजगार में लगे, सब कर देगा गांव में परिवर्तन। हम तो केवल उसको एजुकेट कर दें, उसको रोजगार से जोड़ दें और हेल्थ सिस्टम गांव का अपडेटेड कर दें। तो ये काम एक किसी जमाने में रोटरी क्लब ने एक काम लिया, पोलिया मुक्त भारत। वह एक दिन सफलता प्राप्त हुई। शुरू में बच्चे मां पोलियो की दवा नहीं पिलाती थी, डरती थी। भारत नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर ऐसे विकसित राष्ट्र हैं जहां पर मैं गया तो वहां आंदोलन किस बात कर रहा था, वैक्सीन नहीं लगाएंगे, इसका आंदोलन हुआ था विकसित राष्ट्रों के अंदर, जिनकी आबादी केवल 80 लाख। हमारे यहाँ 2 करोड़। एक दिन में जब मैंने वहां के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से चर्चा हुई तो मैंने कहा हमारे यहाँ एक दिन में 2 करोड़ वैक्सीनेशन होता है। उन्होंने कहा हमारे 80 लाख पॉपुलेशन है जिसमें आधी हुई और हमारे आंदोलन करते हुए वैक्सीनेशन लगाएंगे। तो ऐसा नहीं विकसित राष्ट्र ही समझदार है, अपन को गलतफहमी कि वो ज्यादा हमसे समझदार है। हमने कोरोना के इस महामारी के अंदर हमारे सामूहिक प्रयासों से दुनिया को बता दिया हमारी संस्कृति संस्कार सामूहिकता से है, और यही हमारी बड़ी ताकत है। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर और ये सामूहिकता का सर्कल, गांव गांव में जाना, यूथ तैयार करना, जो अच्छे हो सब है। आप इस पर हमें कोई बात हो तो हमें डाल, फिर मैं आपके सिस्टम सब डेवलप करूँ। एजुकेशन का आप सिस्टम आप मुझे बता दोगे, इतने स्कूल है, इसमें ये आवश्यकता है, मैं आपकी मिलकर लोगों से सहयोग करके वो बेहतर स्कूल कर देंगे। हेल्थ सिस्टम में आप बता दोगे कि ये 3-3, 4-4 बच्चे हैं, उनकी ट्रेनिंग करा देंगे, और आने वाले समय में उनके छोटे मोटे इक्विपमेंट लाकर मिनी डॉक्टर बना देंगे उनको। लड़ना, संघर्ष करना, सरकार तक पहुंचाना, राशन ठीक से पहुंच रहा नहीं पहुंच रहा है, कैसे पहुंच रहा है, पीने के पानी की योजनाएं क्या थी, कितना पैसा लगा, क्या लगा। कुछ लोग जिहादी तो नहीं शब्द कहते हैं उसको, लेकिन जो परिवर्तन कुछ न कुछ करना चाहते हैं समाज जीवन में। हर पैसा, आने वाला पैसे का ठीक से उपयोग हो रहा नहीं हो रहा है, सरकार की योजनाओं का लाभ जो लोगों को मिलना नहीं मिल रहा है, लोगों को पता ही नहीं था योजनाओं का। 2-2, 3 बच्चे जो सरकारी राज्य और केंद्र की योजनाओं के बारे में जाने, उसका ठीक से उपयोग हो रहा नहीं हो रहा। सब ऑनलाइन सिस्टम में 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, अगर सिस्टम में गड़बड़ है तो 2 दिन, 3 दिन शिकायत करोगे तो एक बार अधिकारी आएगा आपसे। किसी ने घर बैठे बैठे करते रहोगे ना तो ही परिवर्तन आ जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं। आज एक ट्वीट करते हैं देश के अंदर, तो देश के प्रधानमंत्री जी, देश के जितने मंत्रीगण हैं, एक ट्वीट से चिंतित होते नहीं होते कि देश में प्रॉब्लम, इसका कैसे समाधान होगा। और बहुत टैलेंट है। मैं जब अभी हम
देश भर के अलग अलग राज्यों के 2-2, 3-3 जवानों को देश की आजादी पे संघर्ष करने वाले लोगों या आजादी के बाद भारत के निर्माण में का योगदान हुआ, उसके लिए बुलाते हैं, उनके जीवन के बारे में बोलते हैं, उनके जीवन के संघर्षों से प्रेरणा लेते हैं। कितनी अच्छी डिबेट करते हैं, कितनी जानकारी लेके आते हैं। और जो पुरानी हमारी विरासत है, विरासत को संरक्षण करना, उससे प्रेरणा लेना और नए आधुनिकता में भी काम करना। अभी आपने कहा कि चर्चा डिबेट होना चाहिए, आप चर्चा डिबेट हो, आप विषय पर चर्चा करें, डिबेट करें। फिर दिल्ली के अंदर एक ग्रुप आया, हमसे बताएगा कितने लोग आ रहे हैं, फिर हम आपके संबंधित मंत्रियों से, उनके सेक्रेटरी से, उनके कानून बनाने वाले लोगों से, कितने लोग हैं जी। मैं संसद में देखता हूँ कानून बनाते समय क्यों नहीं अपने जनप्रतिनिधि को बताते नौजवान ये कानून बनने वाला है, इस कानून में हमारा इनपुट ये है। पब्लिक डोमेन में जब कानून का प्रारूप डाला जाता है तो उस पर डिबेट हो, कानून बनाते समय जब चर्चा हो तो हमारे संसद सदस्य विधायकों को बताया ये कानून है, इसमें ये आपको बोलना चाहिए विषय। और रूल्स पे तो कोई बोलता ही नहीं, रूल्स तो वो सब सरकारी अधिकारी बना ले, उस पर तो जनता की पार्टिसिपेट भागीदारी होती नहीं, वो हमारे लिए चिंता का विषय। इसलिए लोकतंत्र में नौजवानों की सक्रिय भागीदारी, कानून बनाने में और डिबेट में चला। आज मैं गांव में गया तो एक महिला ने क्या कहा, क्या हो रहा है भारत की संसद, क्यों नहीं डिबेट होती, क्यों नहीं चर्चा होती? हम कहां लोकतंत्र को ले जा रहे हैं? नारेबाजी, तख्तियां ले जाने के लिए हमने लोगों को नहीं भेजा, हमने भेजा था हमारी समस्याएं, कठिनाइयां, हमारी आकांक्षाओं, हमारी अपेक्षाओं को सदन में उठाने के लिए, उसकी चर्चा के लिए। क्या हो रहा है नगर निगमों में, क्या पंचायतों में हो रहा है? कोई नगर निगम की बैठक कभी भी एक दिन 5 घंटे तक सफलतापूर्वक चर्चा पर नहीं चलती। क्यों नहीं बोलता देश का नौजवान कि भारत के लोकतंत्र को सशक्त मजबूत करना है तो इन सदनों का उपयोग चर्चा डिबेट के लिए होना चाहिए। चर्चा समाज सहमति असहमति हो, जहां आलोचना करनी है आलोचना करें, नीतियों कार्यक्रम में परिवर्तन करना है तो उसके सुझाव दें, नीति कार्यक्रम ठीक नहीं उसकी आलोचना भी करें, कानून बनाते समय सक्रिय भागीदारी लें, डिबेट हो। ये क्यों नहीं भारत का नौजवान करना चाहता, क्यों राजनीति से दूर जाना चाहता? हमारे ऋषभ भाई बैठे हैं यहाँ पर, लगातार कितने हजार नौजवानों को जोड़ना चाहते हैं। चर्चा होगी उनसे, क्या भारत के नौजवानों को इस लोकतंत्र में सक्रिय भागीदारी निभाना चाहिए। हमारा जनप्रतिनिधि कैसा हो, 75 साल बाद भी अगर हमें चिंतन करना पड़े, कितने दिन सदन में बैठा है, सवाल पूछो, आप कितनी बार बोले, किस विषय पर बोले? हमने हमारे मुद्दों को सदन में उठाया नहीं उठाया, जहां पंचायत उठाए, नगर पालिका उठाए, विधानसभा का मुद्दा मुद्दा विधानसभा का लोकसभा उठाएंगे, मुद्दा पंचायत का विधानसभा उठाएंगे। किसके लिए किसको चुनकर भेजा है, वहां सदन में उसी तरीके की बात करना और सार्वभौमिक बात करना, गंभीरता से बात करना, कानून बनाते समय सार्थक चर्चा करना। अगर ये भारत में आ जाएगा तो हम बहुत कुछ जो परिवर्तन हो रहा है उसमें कई परिवर्तन में सहयोग करेंगे। हमारा लोकतंत्र सशक्त है, मजबूत है, हमारे मतदाताओं की लगातार भागीदारी बढ़ी है, लेकिन और हमारी सक्रियता बढ़नी चाहिए। ये मेरा आप लोगों से निवेदन है, हमारी लोकतंत्र में सक्रिय भागीदारी बने। लोकतंत्र से ही सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन में परिवर्तन आए। संसदीय लोकतंत्र के अलावा कोई सर्वश्रेष्ठ पद्धति नहीं है। जिन देशों में लोकतंत्र नहीं वहां भी लोकतंत्र की वो चर्चा करते हैं, तो लोकतंत्र बेस्ट प्रैक्टिस है। दुनिया के कितने देश हैं जहां लोकतंत्र नहीं है, लोकतंत्र की चर्चा करते हैं। हम देखते हैं वहां पर बड़े बड़े सम्मेलन आयोजित करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं।
एक पार्टी सिस्टम है तो भी लोकतंत्र की चर्चा करते हैं। तो लोकतंत्र के अलावा सर्वश्रेष्ठ पद्धति नहीं है, इसलिए लोकतंत्र में भागीदारी हमारी आवश्यक है नौजवानों की। और ये मानकर चलना चाहिए कि मैं गांव में अकेला व्यक्ति, मेरी ही जिम्मेदारी है, मुझे ही परिवर्तन करना है इस गांव में। जब एक परिवर्तन के उठेगा तो दूसरा उसका साथी मिलेगा, तीसरा मिलेगा। कोई दुनिया में सोच सकता था कि भारत जैसे 140 करोड़ देश में स्वच्छता का अभियान चलेगा? 75 साल में लोग भूल गए थे, जहां कचरा फेंकते थे, वो जागरूकता आई, कुछ परिवर्तन आया, प्लास्टिक फ्री भारत की ओर बढ़ रहे हैं। कितने परिवर्तन हम हमारी आंखों के सामने देख रहे हैं। हमारी अगली पीढ़ी को हम क्या देना चाहते हैं? हमें अगली पीढ़ी को विकसित भारत बनाना है, तो जो कुछ भी हमारी कमियां हैं उसको पूरी करना, और दुनिया के बदलते परिप्रेक्ष्य में हमारा नौजवान बौद्धिक क्षमता, इनोवेशन, रिसर्च, नए परिवर्तन में भागीदारी निभाकर देश के सॉल्यूशन करना, समस्या का समाधान करना, यही हमारी जिम्मेदारी है। बहुत लंबी चर्चा होगी आपसे, और मैं आशा करता हूं कि यहाँ जो चर्चा संवाद होगा उसका बेहतर परिणाम निकलता है चर्चा संवाद से। और मेरा तो आपसे एक ही निवेदन है कि इस पहाड़ी क्षेत्र में 5 से 10 नौजवान केवल हर विषय पर, कोई एजुकेशन पे, कोई हेल्थ पे, कोई रोजगार पर, कोई मूलभूत सुविधा पर, कोई राज्य केंद्र से, ऐसे नौजवानों के ग्रुप तैयार करना। उसके बाद हम बैठेंगे, चर्चा करेंगे, यहाँ के एमपीज को बुलाएंगे, एमएलए को बुलाएंगे, जिस प्लेटफॉर्म पर चर्चा होगी इस प्लेटफॉर्म पर आपको उनको बिठाएंगे, उनके अभाव को सुने और समाधान करें। समाधान एक दिन निकलना ही और हमको ही करना है, मान के चलना चाहिए, ये आत्मविश्वास। थके निराश व्यक्ति जीवन में कुछ नहीं कर सकता। व्यक्ति तो वही है जो जीवन में उस लक्ष्य तक पहुंचना, लक्ष्य अपने तय किए, उस सपने को जो देखा उस सपनों को पूरा करने के लिए आत्मविश्वास से काम करना, वही नौजवान होता है। थका निराश कुछ नहीं हो सकता, ऐसे सोच का नौजवान भारत को नहीं बदल सकता। आप जैसे नौजवानों की आवश्यकता है, और ऐसे नौजवान देश में और हम प्रेरित करें, यही हमारा संगठन का लक्ष्य होना चाहिए। मैं यूथ ऑफ इंडिया के सभी सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बधाई, आपने कार्यक्रम आयोजित किया। और मुझे लगता है कि हमें सबसे ज्यादा उन अभाव में, जो सबसे अंतिम गांव अभाव में, उसके जीवन में परिवर्तन करना, फिर जो हमारे पास संसाधन हो, साधन हो, उनको आगे बढ़ते जाना। हमारा क्या होता है बेसिक, जहां पर डेवलपमेंट है वहां डेवलपमेंट नहीं बढ़े। हमारा निशान होना चाहिए सबसे अंतिम गांव, अंतिम व्यक्ति, उसके जीवन में परिवर्तन कर दे, क्योंकि सीमित संसाधनों का उपयोग बेहतर कैसे हो वो नौजवान से ज्यादा नहीं जानता। और मुझे लगता है कि ये काम आप करेंगे, ये आपकी जिम्मेदारी। फिर मैं मिलूंगा जब आप पार्लियामेंट में आएंगे, तो कुछ मेरे पास रिपीट बना के लाएंगे, और मैं उन सब मुद्दों पर, जिन मुद्दों पर मैंने आपको बताई, मुद्दों पर मैं उसकी कोशिश करूंगा कि संबंधित मंत्री जी को, अधिकारी को और कुछ सहयोग करने वाले लोगों को बुलाकर हम आपस में एक इन समस्याओं का समाधान का रास्ता निकालें। चर्चा, संवाद, निष्कर्ष, और वो चर्चा संवाद की सफलता जब ये है कि जब उसमें चर्चा संवाद से परिवर्तन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी ने हम सबके सामने एक स्वप्न रखा है कि हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर हम मूल रूप से काम करें। मुझे लगता है ये स्वप्न अब संकल्प की तरह हम सब यहाँ पर एक संकल्प लें कि आज के 3 महीने बाद जब हम अपना यूथ ऑफ इंडिया मॉडलिंग यूनाइटेड नेशंस करेंगे, उसके बाद हम ये कुछ ना कुछ चीजों पे काम कर सके। हम सब एक साथ इसको संकल्प लेते हैं और फिर ये जाएगी सिद्धि की तरफ आपके आशीर्वाद से और आपके मार्गदर्शन से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम आपसे और निवेदन करेंगे
एक ऋषभ जिसके बारे में अपनी चर्चा की है, मैं आग्रह करूंगा कि ऋषभ 2 मिनट कहें। और यहाँ पर बहुत सारे चाय बगानों से जो आए हैं बहनें, भाइयों और बहन, वो सब आपको खाना पहना के सम्मानित भी करना चाहते हैं। 5 मिनट आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, ऋषभ प्लीज। Thank you. Honorable Speaker, sir, and it's a pleasure to be able to share podium and to be able to speak. I've come for a very different purpose. I was actually writing a book and I had to meditate. So the organization I run works in 200 cities across the country. So we were discussing out there saying which place to go and write the book. So they said, we discussed Andaman Nicobar जाए, बॉम्बे में तो पोल्यूशन ज्यादा हो गए, लोग कम है, पोल्यूशन ज्यादा है, दिल्ली जैसा हो गया, and all of these different cities, and they said if there is one place, Rishabh, that you should go and you should write a book and you should meditate, it is not in any other part of India, but it is in Darjeeling, which is the Queen of Hills. I'm very happy to come. Very happy to be here. But Honorable Speaker said something, and I want to just quickly elucidate. You know, Shailesh said that आप लोग introduce करते हैं आप लोग when you stand and when you introduce yourself, and I want to just quickly ask some of you to introduce yourself. If somebody asks you to introduce yourself, how will you introduce yourself? Anyone? Yes, how will you introduce yourself? My name is Nandita. I'm very new, and I look forward for sustaining a future. That's why I'm working with Bio. Fantastic. Somebody else, आप कैसे introduce करेंगे? आप, you know, शैलेश ने बताया कि आप कोई एक शहर से दूसरे शहर से हैं, तो आप कैसे introduce करेंगे? Anybody wants to stand up and introduce? Yeah, hi. I'm also running an organization. Like we are working for the how we for this. Super. Thank you very much. यही एक्चुअली प्रॉब्लम है शैलेश, जो आपने बताया वही समस्या है. सॉरी बट माननीय स्पीकर सर, यू नो द प्रॉब्लम इज दैट वी आइडेंटिफाई आवरसेल्व्स विद कि हम करशोम से हैं, हम दार्जिलिंग से हैं, या फिर हम गुजरात से हैं, हम महाराष्ट्र से हैं, हम सिक्किम से हैं. एक्चुअली हम लोग भूल जाते हैं कि हम एक देश से हैं, एंड दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन. दिस इज द इशू. आप जब भारत के बाहर जाते हैं, and how many of you have traveled overseas? Just by show of hands, how many of you? So when you've gone outside of India, do you introduce yourself? Do you stand out there? Do you introduce yourself? How do you introduce yourself? When you meet somebody who is also brown skinned, what do you say? You're an Indian. तो भारत के अंदर सर यही प्रॉब्लम होती है. भारत के अंदर we introduce ourselves as that I am from Sikkim, I am from Himachal, I am from Gujarat. The problem is that we need to start identifying with this country, which is the greatest country in the world. And I'll tell you why it is the greatest country, not because I'm brown and I'm from India. I'll tell you, like Speaker Sir said, what is the one thing about the country which I'm really proud about, and it's not just, sir, that Australia का पूरा population हम लोग ने एक दिन में vaccinate किया. And you know, he spoke about it. But एक ही देश है जहाँ चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है और जहाँ basically a rickshaw wala can get into the Indian cricket team. There is only one country in the world essentially which has given the world the oldest university. The oldest university is which university? और वो यूनिवर्सिटी कहाँ थी? यहाँ थी. जो पहली पुस्तक फॉरेन पॉलिसी के बारे में लिखी है, वो फॉरेन पॉलिसी की पुस्तक यहाँ लिखी गई थी. वो पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र था. The problem is that we forget that we are a part of this country, and we start identifying with A region and B region and C region. At the end of the day, if all of us start identifying with this one thing and this one country, then automatically, जो प्रधानमंत्री जी चाहते हैं, जो अलग-अलग अन्य पार्टी चाहती है, और जो स्पीकर सर ने भी बताया, to develop our country, the only way it will happen, in my humble opinion, is when there are 800 million of young people who stand up and start introducing yourself as, hi, I am not a Hindu, hi, I am not a Muslim, hi, I am not from Sikkim, hi, I am not from
Darjeeling. Hi, my name is Rishabh and I am from this country that is called India. And that is the main problem. The main problem is that we divide on different lines, and that division, sir, needs to stop. And that's the reason why I'm so grateful that he's come here and he spent some time with all of you. What he said is so true, education and healthcare. But the first thing in education, and I sincerely hope I'm not as educated as him, but the first thing that I hope that you can do is the next time somebody asks you, just stand up and say, hi, my name is so and so, and I'm in India. With that, I think I have taken up more than my allotted time. Thank you very much. That's why you shouldn't ask me to speak, especially in front of the speaker. But really wish you all the love and success, and hope that your everyone conference takes off and you produce leaders. आपको क्या लगता है कि इन नौजवानों को क्या असाइनमेंट देना चाहिए, क्या काम देना चाहिए? आखिर जब तक आप किसी को कुछ वर्क नहीं देंगे, कुछ काम नहीं देंगे, भाई आपका ये एजेंडा है, चर्चा हुई, बातचीत हुई, संवाद हुआ और निष्कर्ष निकल गया, ये तो जहां प्लेटफॉर्म बहुत है। असाइनमेंट क्या है, मतलब करना क्या चाहिए इनको? गांव में बैठकर कितने बच्चे गांव, मतलब आप चले जाओ, आप तो गांव में जाते हो, कितने गांव में बच्चे हैं जो पढ़ाई लिखाई कर ली गांव में, लेकिन उनको गांव के लिए क्या करना है? तो गांव में जो बुजुर्ग है ना, मैं आज गया तो मुझे कोई नौजवान ने आगे नहीं बताया कि साहब इस स्कूल में फर्नीचर नहीं है, कोई नौजवान ने नहीं बताया कि साहब गांव में थोड़ी पानी की प्रॉब्लम है, किसने बताया? बुजुर्ग व्यक्ति ने। हमारे ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम, कोई जवान आज अपने कंप्यूटर में गिर रहा है, कोई इसमें बिजी हो रहा है, कोई इसमें बिजी हो रहा है। मैं एक दिन निकला है विदेश, पहले तो भारत में निकला, तो भारत में मैंने कितने बच्चे हैं जो बिना कंप्यूटर, बिना मोबाइल के बैठे चिंतन कर रहे हैं। 90% लोग मोबाइल पे बातें कर रहे थे, बात कर रहा कोई बेटा तो पार्क में बैठा था, एक लड़का इधर बैठा, एक लड़की इधर बैठा, तो भी वो अपने में बिजी थे। तो समय होना चाहिए बिजी, उसका आउटपुट ला क्या लाओ, मतलब आप उसका आउटपुट लाओ, चलो देखो मोबाइल में, देखो क्या अच्छा बात हो रही है, क्या परिवर्तन कर सकते हैं, क्या हमारे यहाँ हो सकता है। कोई नौजवान नहीं बताते, चाहे पहाड़ में चल जाओ, चाहे जमीन में चल जाओ, चाहे लोकसभा क्षेत्र में चल जाओ, मुझे बुला रहे, पूछना भाई क्या करते हो तुम क्या करते हो, क्या करते हो, कहाँ तो पड़े हो? वो आता ही नहीं, जब आता है बुजुर्ग ही आता है, बुजुर्ग महिला आती है। चाय बागान की समस्या कोई नौजवान ने नहीं बताई, वो महिला जो चाय बागान में काम करती है उसने भी समस्या बताई। कोई नौजवान मुझसे नहीं मिला कि 1 2 3 4 गांव में गया हूं, कोई नहीं बताता, वहां भी नहीं बताते, जमीन पे भी नहीं बताते। आखिर ये मेरी समझ में नहीं आ रही, ये क्या प्रॉब्लम है? इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताओ मुझे, क्यों नहीं वो सारी समस्याएं समझता? मेरे को याद है, क्या लगता है, मैंने एक दिन कहा कि भाई इस गांव में स्कूल नहीं है, हाँ साहब क्यों नहीं जा बच्चे 2 किलोमीटर से। तो मैंने कहा भाई ऐसा है कि 2 किलोमीटर ना तुम्हारे गांव में एक ऐसा करो, 5,000 रुपए पर मंथ देंगे, किताबें देंगे, ये देंगे, कंप्यूटर देंगे, तुम ऐसा करो, इसमें सर्वे करो कितने बच्चे हैं और इनको पढ़ाने का काम करो। एक गांव का लड़का तैयार नहीं हुआ, शाम तक 3-7 दिन तक कोई नहीं आया। क्या दिक्कत है? आप ही पहाड़ के अंदर शुरू करोगे, जो दूर गांव से 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर गांव है, ऐसे गांव के आइडेंटिफाई करो। पहले 2000 बच्चे को देंगे, गांव में पढ़ाना है, जो बच्चे स्कूल में नहीं जाते वो यहाँ बैठ पढ़ाओ, किताबें दे पढ़ाओ, तो जरूरत नहीं मंदिर बैठ के कहीं बैठ के पढ़ाओ, आपने खड़ी करिए बना लो। रागी पे चलता है जो घुमंडर जाती होती है उसको, यहाँ ढोल बजाने वाला, यहाँ बजाने वाला, काम करने वाला, ये डेरा यहाँ गया, डेरा गया, उनके बच्चे नहीं पढ़ते। तो आखिर आप एक अध्ययन करना,
मेरा दावा है 60 साल की उम्र से ज्यादा वाला व्यक्ति 75% अनपढ़ है। कितना? 75%। मैंने कहा कि मेरे लोकसभा के अंदर एक महिला से कहा बीएड करके, हाँ नौकरी नहीं मिलती। मैंने कहा ऐसा करो, इस गांव के अंदर जितनी महिला है ना, उन महिलाओं का सर्वे करो कितनी पढ़ी लिखी नहीं, क्योंकि इतना जब साइन कर ले पढ़ ले। इससे ज्यादा मेरी अपेक्षा, उनको कोई इंजीनियर नहीं बनाना, 50 साल पढ़ ले साइन कर ले। मेरी माँ भी अनपढ़ थी, तो उस गांव में हमने स्कूल शुरू किया। पहले तो कुछ लेडीज आई नहीं, तो मैंने ऐसा करो सब लेडीज को एक साड़ी देंगे, तो आई। फिर मैंने कहा जो 15 दिन पहले उनको 2 साड़ी देंगे। जब जाकर पूरी कोशिश करने के बाद भी 70% लोगों को मैं साइन कर पाया और पढ़ना सीखा, पर कोई नौजवान आगे नहीं आता। मुझे ये पता चलता इतना बिजी है उसमें। मैंने पूछा मेरी बेटी से, मैंने देखो आज कितने घंटे आए पेपर? 6 घंटे। अच्छा आप कोई का कंप्यूटर उठा के खोल के देखो, मोबाइल कितने घंटे मोबाइल बिताया आपने, उसमें तो पता चल ही जाता है मोबाइल में कितने घंटे उपयोग किया। मैं तो पहले नहीं समझता था, एक दिन बेटे बेटे बोले का 8-9 घंटे मोबाइल में बिताते हैं। 1 घंटा भी गांव के लिए कर लेना तो गांव की दशा परिवर्तन कर। 1 घंटा भी। Mr. Ma'am. My name is Sanjay Malama. I'm a researcher working in NGO. I think I shall say it directly, putting a light on what he said. So out here, what is happening is like, suppose if you want to do village studies, suppose if you want to start village, more contextualizing those village, put in a greater frame. What we have to do is, we generally put a collab in some of the departments, like for say, Center of Anthropology, Center of Himalayan Studies, like that. But then out here in University of North Bengal, there's only one center, Center for Himalayan Studies, which is conducting each and every research on the Himalayan village. So people like now, researchers, what they're doing is, we have a lot of like areas which is not yet have been researched. So now these researchers, scholars are like now they're playing a greater role in the Himalayan village. So my concern is, suppose अगर university में अगर ये center अगर एक खुला जाए, like Center for Contextualizing Village Studies, then it would be a very great for the researcher, because बहुत अच्छा। because बाहर अभी research करने के लिए there are ample of topic for everyone, but for people like us staying in a village, हम लोग के जगह में अगर research करने के लिए बहुत सारी चीजें, then why we need to research some other topics? So my main point is, if Center for Village Study more putting contextualizing those village studies अगर वहाँ पे होता है, तो I think we should not move outside our state. एक राज्य के मुख्यमंत्री जी ने जितने भी कॉलेजों के अंदर पीएचडी करते थे, तो उन्होंने क्या कहा कि बहुत सारी पीएचडी देखी, 80% पीएचडी का उपयोग नहीं था। क्या थीसिस पे बनाया उपयोग नहीं था। उन्होंने कहा इसको बदल दो पूरे, ये दिस प्रॉब्लम है, इस पर पीएचडी करनी। और उसमें से जो गांव में गए, समस्या देखी, आखिर पीने का पानी क्यों नहीं पहुंच रहा। हमें एक गांव में गया तो प्रधानमंत्री सड़क योजना, तो पीने का पानी क्यों नहीं पहुंच रहा, राशन क्यों नहीं पहुंच रहा, राशन नहीं पहुंचने का क्या कारण है। अब एक गांव के अंदर आदमी से पहले 10 किलोमीटर घूम के राशन लेने जाना पड़ता है। अब मैंने कहा भाई गांव में क्यों 10 किलोमीटर जाता है कि साहब, हमने कई बार एप्लीकेशन दी, ये गांव हटा हुआ, लेकिन उसका इस गांव से जोड़ना, इस गांव को इसके पास जोड़ दे, उस गांव को इसके पास जोड़ दे, राशन घर पे मिल जाएगा। ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं जिस पर विश्वविद्यालयों को, इन पर जितनी राज्य के मुख्यमंत्रियों को विचार करना चाहिए कि भाई आपकी जितनी पॉलिसी जाए
गांव छाट एक जगह बताए पीएचडी दे कि मेरी ये योजना है, इसका क्या तो असर हो रहा है और क्या इसके परिणाम आ रहे हैं। तो अगर उसका अध्ययन करेगी सरकार तो रिजल्ट आएंगे जो आपके लिए एक ये कोर्स खुल जाएगा, कोर्स से काम नहीं चलेगा। इसके लिए जो थीसिस बनाने वाला, पेपर बनाने वाला वो गांव में जाएगा, सब समझेगा, उसको पेपर बनाएगा और सरकार उस पर भी एग्जीक्यूशन करे कि भाई ये कमिटी इसको ये एग्जीक्यूशन हमने किया है। अभी आईटी के अंदर तो बहुत जल्दी परिवर्तन कर सकते हैं ना। हर राज्य सरकारों ने कहीं न कहीं ग्रीवेंसेस से कंट्रोल रूम खोल रहे, एक बार डालेंगे, 2 बार। मुझे पता है कि कोई पार्लियामेंट हमारे पीछे पड़ जाता है, ये 2 3 4 5 सूचना के अधिकार दर कई बार तो ऐसा होता है एमपी साहब को जवाब भेजा, वो जवाब ठीक नहीं था तो भी उन्होंने लिखा के साथ जवाब ठीक नहीं था वापस लिख के दे सचिवालय को। उस सचिवालय को वापस बोलते साहब इसका जवाब अधूरा था, तो नियम है आप जवाब अधूरा है तो आप वापस लिखो कि इस पॉइंट पर ये चीजों का जवाब अधूरा है, कोई दिक्कत नहीं। मैं इनसे अपेक्षा नहीं करता, उन लोगों से भी अपेक्षा मेरी ऐसी रहती है। ठीक कहा आपने, करिए, प्रयास करिए कि सारे पहाड़ों के इलाकों के अंदर कई एनजीओ संगठन को खड़ा करिए, कुछ लोग जुड़ेंगे, कुछ समस्याओं को समझेंगे। और आप बताओ कोई विशेष बात है तो, कोई विषय रखना चाहता है अपना? अब देखो इनको प्रेसिडेंट अवार्ड मिला है, अभी किसको पद्मश्री मिलता था? जो नेता का डॉक्टर था। अब किसको पद्मश्री? जो ओरिजिनल डॉक्टर गांव में सेवा कर रहा है। परिवर्तन आया नहीं, परिवर्तन आता है। सर मेरा नाम पल्लव विश्वास है। मेरा एनएसएस में वॉलंटियर था। अभी मैं उस कॉलेज का ग्रुप लीडर हूँ जहाँ पे 100 यूथ है जो कि समाज के लिए काम कर रहा है। थोड़ा देर पहले आप जो बोल रहा था कि ऐसा हो जाता है कि हाँ हम लोगों के पास तो बहुत सारा मतलब केस आता है कि हाँ ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, बट हम लोगों के पास इतना सारा नहीं रहता है कि कैसे अभी उसको मतलब सॉल्यूशन करे, तो किसके साथ मिले, क्या करे। जैसे करके सर हम लोग मतलब ये तो मतलब सरकार तक पहुंच जाता है कि हम लोग बहुत एफर्ट लगा के मेरा कॉलेज काम कर रहा है, मेरा प्रोग्राम ऑफिसर काम कर रहा है, इसी वजह से राष्ट्रपति में भी मेरे को मान्यता दिया है। तब अभी वो मान्यता के बाद मेरे पास अभी बहुत सारा प्रॉब्लम आना शुरू हो गया। टोटल नॉर्थ बंगाल से सभी लोग फेसबुक में मतलब रिक्वेस्ट भेज रहा है, सोच रहा है कि हाँ उसका तो राष्ट्रपति के साथ ईपी है, मींस एक शायद प्रॉब्लम हम लोग का हल कर सकता है बोल के सभी लोग बहुत बहुत। देखिए प्रॉब्लम आ रहा है, अच्छी बात है। मैं एक कहानी बताऊं उसकी, बैठो देशी भाषा में। एक कार्यकर्ता हमारे पास आता है, मैंने भाई साहब आपको आज तक कोई समस्या नहीं होता, ठीक है, आज तक मैं कोई काम के लिए अच्छा नहीं। तो फिर मैंने उससे एक दिन कहा, मैंने कहा तुझे ऐसा लगता है कि बगल वाला नहीं जानता है? क्यों? अगर तेरे पास समस्या लेकर कोई नहीं आया तो ये मानकर चलो कि तुमसे कोई भी अपेक्षा नहीं थी इसलिए नहीं आया। समस्या लेकर उसी से बात आती जो समाधान कर सकता है। नहीं तो ऐसे भी नेता है जो कहते दिन भर ऑफिस खोल के बैठते, कोई आता ही नहीं क्योंकि उस समस्या का समाधान करते ही नहीं। तो हमेशा अच्छी बात है कि आपके पास लोग आ रहे हैं, ये भगवान की कृपा है कि आपके पास लोग आ रहे हैं। लोग किसके पास जाते नहीं तो। इसलिए जो आता है, जो भी आया आपके पास, आपके पास आया मेरे गांव के अंदर नल नहीं पहुंच रहा, आप अंतर लड़ते जाओ, आरटीआई लगाओ, क्या इस जल की योजना है? योजना है तो नहीं तो कब तक है? ऑनलाइन आरटीआई एक बार लगा, 2 बार 3 बार उनको लिखना पड़ेगा, हाँ ये योजना नहीं है, ओके। कब तक योजना बनेगी?
और योजना है तो क्या योजना चालू करोगे, हाँ योजना चालू किया, पानी मिल रहा है, वहां देखोगे आप पानी नहीं मिल रहा तो पकड़ लोगे। तो जिसके पास अपेक्षाएं होती है ना, उसी के पास लोग आते हैं। जिसके पास मानो अपेक्षा नहीं, उसके पास लोग आएंगे नहीं। मेरे पास कोई आया, मैंने कागज में कर, फिर कागज में दूसरे दिन कोई नहीं आया। कार्यकर्ता वही अच्छा रहता है, मैं उसको कार्यकर्ता जो रोज मेरे पास 5 समस्या लेकर आता है। मैं उस कार्यकर्ता को कभी नहीं मानता जो एक भी समस्या लेकर नहीं आता, और कि मैंने वैसा हाथ तक एक भी काम नहीं बताया ना आपको, मतलब तेरे इलाके में तुझे कोई जानता ही नहीं या तुझे ये मानता नहीं कि तू समस्या का समाधान कर देता है। अगर समस्या का समाधान करता तेरे पास लोग आते हैं, इससे अच्छी बात है। थकते क्यों, समाधान निकलेगा ही निकलेगा। अच्छा है ना आपके पास लोग आ रहे हैं। आपको मान के परसेंटेज का अवार्ड मिला है तो आप लिखो, समस्याएं लिखो, इसको लिखो, उसको लिखो, हमको लिखो। आपके सांसद महोदय को बताओ, एक कागज बताओ, एमएलए को बताओ, 2 कागज बताओ, अपने एडवर्टाइजमेंट शब्द बोलो, 2 ट्वीट करो, एमएलए साहब एमपी साहब मिल जाएंगे, मैंने आपकी समस्या आपका समाधान क्यों नहीं किया। आजकल तो रेल में चलते बैठे आदमी ट्वीट करता है, रेल मंत्री खर्च करते तुरंत जवाब देते हैं ना। तो विदेश में फंस जाता, विदेश मंत्री तुरंत उसका ट्वीट का हवाला के जवाब। मेरी बेटी है कोरोना के अंदर, इसको एक ने ट्वीट कर दिया। ट्वीट क्या कर दिया कि मैं मेरी माँ अकेले हैं, हमें बॉम्बे जाना है और हमारा इंतजाम करें, अभी परेशान उनके इंतजाम में। मैंने पूछ बेटा अभी कहा है, अगर ऐसी दिक्कत तो कार करा देते हैं, कार में चल जाएंगे। तो वो तो ट्वीट करके समस्या करके छोड़ गया, ये परेशान हो रही। तो थोड़ी देर बाद उसने कहा, मैंने कहा बात करो उसमें, कार में करा देते, कार से चल जाए, ऐसी दिक्कत है। तो पता चला तो रेल में बैठ के जा रहे हैं चले गए। तो आपके पास कोई समस्या लेकर आता है, लड़ते रहो, लड़ते रहो, जब तक समाधान हो, जब तक लड़ना है। थकान और निराश जीवन में होना ही नहीं चाहिए। कोई नहीं होता ही नहीं कुछ भी, क्या होगा, कई बार लिखती है साहब कुछ नहीं हो रहा, ऐसे काम नहीं चलता राजनीति के अंदर। अब तो 543 मेंबर पार्लियामेंट की समस्याएं सुनते हैं, तो तू उठा, मेरे साथ कई बार उठा दी मैंने, फिर उठा दे एक बार। चलो नमस्कार। और कोई विषय, और कोई पूछना चाहता है? मेरे साथ कौन गए थे? ये गए थे, क्या नाम है आपका? बताओ। उस स्कूल में फर्नीचर था, नहीं था ना स्कूल में फर्नीचर? नहीं था सर, नहीं था सर। अब 3 महीने में फर्नीचर आ जाएगा स्कूल में। फर्नीचर आप ही लोग करा दोगे। सिलीगुड़ी जाऊंगा तो कहीं सेठ से बोलूंगा भाई स्कूल में 2 फर्नीचर उठा दो, कोई दिक्कत थोड़ी है। कोई दिल्ली से तो उठा से थोड़ी भेजूंगा फर्नीचर। कोई ना कोई दानदाता मिल ही जाता है ना। सर एक बाढ़ का ही समस्या आप बता रहे। सर हमारा यहाँ पर जो दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे है, जो कल आप जिस दिन कहोगे 2 महीने के अंदर आपके यहाँ रोजगार मेला लगा दूंगा दार्जिलिंग में, 1 2 3 रोजगार मेला, आप पहले लिस्टेड बना के रखो। जैसे ही रोजगार मेला लगे तुरंत वहां पर लोगों को भेजो। सर 2003 में दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे को एक वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस मिला था। तो उस वक्त कम्युनिटी डेवलपमेंट एक प्रोजेक्ट चल रहा था, सहायता बोल के। तो वो प्रोजेक्ट अभी जो हमारे सरकार ने मोनिटाइजेशन का कॉन्सेप्ट किया, उस वक्त से अभी वो बंद कर दिया है। उस वक्त से एक एनजीओ चल रहा था, उस कम्युनिटी डेवलपमेंट थ्रू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यहाँ के यूथ के लिए, जो आपने अभी बताया कि हेल्थ सेक्टर में, वॉलंटियर में, जो रूरल वॉलंटियर हम क्रिएट कर रहे थे, तो वैसे ही चल रहा था। सुखना, कर्सियंग, घूम और दार्जिलिंग में एक सेंटर खुला हुआ था। तो पैसे भी वहाँ यूनेस्को से फंडिंग हुआ था। तो 2003-2004 वहाँ पर खुला। लेकिन अभी जो लास्ट ईयर जो मोनिटाइजेशन का कंसेप्ट के वजह से ये दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, पूरा रेलवे बोर्ड ने ये कॉन्सेप्ट के थ्रू वो पूरा सेंटर बंद कर दिया। कम्युनिटी के लिए था, वो सोशल था। आप मेरे विवरण लिख के देना। सर एक बात हमेशा समझाओ आदमी को, जो आपको कागज देता है, नाम, पता, टेलीफोन नंबर लिखो। अभी भी गांव में आदत क्या है, एप्लीकेशन लिखेंगे, 50 लोग साइन करेंगे, एक भी व्यक्ति का टेलीफोन नंबर नहीं लिखेंगे।
आपके उस कागज का कांटेक्ट कैसे करेगा, जब टेलीफोन नंबर होगा तब करेगा, ठीक है ना। कोई बात हो लिखो, टेलीफोन कांटेक्ट नंबर लिखो, व्हाट्सएप पे डालो, फेसबुक पे डालो, तुरंत डालो। 3 महीने बाद फर्नीचर नहीं आया तो फिर रिमाइंडर करो, क्यों नहीं आया, ताकि नेताओं को याद रहे, बोल के आए थे उसका क्या हुआ, उसको रिमाइंडर करो। ठीक है, नमस्कार। जो सब जन आए पद का खाना बनाने के सम्मान में कृपया करके एक जल्दी आइए और करके आप सब जल्दी आएंगे और ठीक है सर। एक बार जोरदार तालियां सर के लिए कि वो सबको पार्लियामेंट में होने में मौका दिया है।
अब जो भी बात में वो कृपया करके जल्दी जल्दी आ जाए। सर जो हम अप्रैल में जो मॉडल यूनाइटेड नेशंस जो चर्चा कर रहे हैं उसमें एक्शन की भी कर रहे हैं। जो भी लोग रजिस्टर कर रहे हैं उसके प्लांट के ऊपर, एनवायरनमेंट के ऊपर, हेल्थ के ऊपर और एजुकेशन के ऊपर। और आज जो आपने हमें विजन दिया है ज्योतिर्मय से तमसोमय ज्योतिर्मय गया, अर्थात अंधेरे से ज्वाला की तरफ जिस तरह आपने आज हमें उजाला दिखाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहते हैं कि मॉडल यूनाइटेड नेशंस का लॉन्च आपके ही हाथों से हो। मैं ऋषभ से भी आग्रह करूंगा अगर आए, उत्सव जी जो टीडी के काम कर रहे हैं, उत्सव जी आप ही आए स्टेज में लॉन्च के लिए। रवि जी आप ही आए। सर एक आपके एक वेबसाइट भी है और आपके एक ठीक है ये पूरे उत्तर बंगाल की युवाओं की तरफ से पूरे महिलाओं ने तैयार किया था जो आ नहीं सके जो बता
Hello. You all can please have your seat, ladies and gentlemen. And there are more to go, so please have your seat. Make yourself feel comfortable. Thank you. हम लोग जो ये G20 का यूथ और सिविल सोसाइटी एनजीओस का पहला इवेंट है जो कि दार्जिलिंग में हो रहा है। ऑफ कोर्स ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राजीव बिस्टा जी नहीं रह पाए और उनका बहुत बड़ा सपोर्ट हम सबके इसके लिए रह रहा है। तो वी विल हैव अ पैनल डिस्कशन जिसमें टीडी फॉरेस्ट से उत्सव जी भी आए हुए हैं, अंजलि विल आल्सो कम। सो 5 मिनट में हम इसको शुरू करते हैं सो दैट द स्टेज गेट्स रीच्ड। बट आई होप ऑल ऑफ यू लाइक इट, आपको अच्छा लगा होगा और आपकी बातें डायरेक्टली सदन तक पहुंच सके ऐसा माननीय स्पीकर साहब ने जिस तरह रखा, आपकी सजेशंस दीजिएगा जो हम आगे भी ले जा सकें एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एज एन एनजीओ। सो जस्ट गिव अस 5 मिनट्स प्लीज। परफॉर्मेंस हो रहा है तो वो प्लीज आप 5 मिनट। So there is a small performance by our very own Sudarshan Logan and Sagan Rice. Please be seated, guys.